ایسا کیسے ممکن ہے حکومتی ارکان اپوزیشن کے ساتھ مل کے کوئی تحریک لا رہے ہو؟ یہ پورا عدم اعتماد پوری کولیشن کی طرف سے آتی، پھر آپ کسی بات پہ کہہ سکتے تھے اپوزیشن جو سیاست کر رہی ہے حکومتی ارکان کے بلبوتے پہ کر رہی ہے۔ جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خراب کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں وزیر اعلیٰ قائد ایوان کے عہدے سے ہٹا کر اکثریت کے حامل کو وزیر اعلیٰ اور قائد ایوان منتخب کیا جائے۔ اکثریت کے بلبوتے پر ایوان نے فیصلہ کر دیا گو کہ ہمارے 5 پارلیمنٹرین مسنگ پرسن میں آ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بلوچستان کی روایت نہیں ہے کسی کو آپ مسنگ کریں، اغوا کریں اور اس کو اس ایوان کو اس کے تقدس کو آپ پامال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچنے کے قریب ہو تو میاں رواشی صاحب بھی آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کی سب سے بڑی خبر بلوچستان اسمبلی کی خبر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی خبر ہے جس کے اوپر سارے پاکستان کی یا کم از کم میڈیا کی تو نگاہیں لگی ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے اندر آج تحریک عدم اعتماد باضابطہ طور پر پیش کر دی گئی، اور اس وقت جو اپوزیشن اراکین تھے یا جو کہ یہ تحریک پیش کر رہے ہیں عدم اعتماد کی، ان کے ساتھ 33 افراد کی جو ہے وہ حمایت موجود تھی۔ اور پھر کھیتران صاحب کا آپ نے سنا، انہوں نے کہا جی 5 ہمارے اراکین جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، ان میں سے 1 کسی طریقے سے پہنچ گئے، 4 ابھی بھی جو ہے وہ ان کے بقول وہ نہیں تھے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جام کمال صاحب کی جو جماعت ہے، یا 2 حصوں میں بٹی ہوئی باپ پارٹی، اس میں سے جو جام کمال صاحب کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ 14 اراکین ہیں اور ان کو حمایت حاصل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جو کہ ایک اہم نقطہ ہے جس پہ ہم ضرور بات کریں گے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باپ پارٹی ہے اس کے اندر ہی ان کو اعتماد کا ووٹ چاہیے، جبکہ تحریک عدم اعتماد کی جو رولز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پورا ہاؤس اس کے اندر جو ہے وہ بائی ڈویژن ووٹ کرتا ہے۔ بہرحال اس کی اصل صورتحال کیا ہے کیا نہیں، اس کے اوپر تو ہم ضرور بات کریں گے۔ دوسری جانب آج اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی ہے، اور اپوزیشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے آج احتجاج کیا ہے راولپنڈی کے اندر، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا بہتر جو احتجاج تھا، نمبر تھا وہاں پہ، سڑک پہ بیٹھے چونکہ تو گاڑیاں بھی پیچھے جو ہے وہ ٹریفک جام بھی ہوئی ہے، لیکن بہرحال آج پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کا اہتمام کیا، اور وہ راولپنڈی فیض آباد کے اندر جو ہے وہ اپنا جلوس لے کے اور دھرنا لے کے وہاں پہ بیٹھے اور نکلے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو بھی احتجاج کرنا ہے، اور وہ اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، وہ دیں گے۔ لانگ مارچ کی بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں۔ تو اب کیا اپوزیشن جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر نکل رہی ہے، اور الگ الگ نکلے گی، لیکن نکل کے وہ پہنچے گی کیا، ایجنڈا کیا طے کریں گے، اور کیا ان کے ایجنڈے میں حکومت کی رخصتی ہے کیا ہے، یہ ابھی تک کی کنفیوژن ہے۔ اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوسری جانب جو لاہور کے اندر بھی ایک بڑا دھرنا اس وقت چل رہا ہے، اور وہ تحریک لبیک پاکستان جو کہ کالعدم تحریک لبیک ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ ان کے دھرنے، ان کے جو رہنما ہے سعد رضوی، ان کی رہائی کے لیے دھرنے ہیں۔ یہ دھرنا ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، پہلے بھی آپ نے دیکھا اس کی ایک ہسٹری رہی ہے، تحریک لبیک سڑکوں پہ آتی رہی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حکومتوں نے ان کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے۔ تو اب کیا ہوگا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے مگر ہم جائیں گے کوئٹہ، ہمارے ساتھ علی شاہ موجود ہوں گے جو کہ ایک سینئر صحافی بھی ہیں اور ایڈیٹر ہیں کوئٹہ وائس کے، ان سے بات کریں گے، پھر ہم اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم علی شاہ۔ وعلیکم السلام۔ علی شاہ صاحب بتائیے، اس وقت بلوچستان میں تو بڑی مزیدار سی سچویشن نہیں بن گئی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ جو نمبر ہے وہ تو جام کمال صاحب کے خلاف نظر آ رہا ہے ہاؤس کے اندر، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں، یا طے ہے کہ جام کمال صاحب کو جانا ہوگا؟ میرے خیال میں ابہام جو ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ اسما صورتحال تو یہ ہے کہ آج جو ناراض ارکان ہے یا اپوزیشن کے ارکان ہے، ان کی تعداد تو اس طرح چونکہ 23 اپوزیشن کے ارکان ہے، اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ہے، جے وائی پی ہے، پی کے میپ کا ایک رکن ہے، ساتھ ہی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم ریحسانی ہے، ان کی تعداد 23 بنتی ہے جوائنٹ اپوزیشن کی۔ اس کے علاوہ 14 ارکان وہ تھے جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کیے تھے، ان میں 11 کا تعلق بی اے پی سے تھا، حکمران جماعت جسے عام طور پر پاپ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 ارکان جو تھے وہ بی این پی عوامی سے، ایک پی ٹی آئی سے تھا۔ تو اس میں آج 33 ارکان جو ہے وہ ایوان کے اندر آئے۔
बलूचिस्तान में जाम कमाल या किसी भी सीएम को हटाने के लिए या इलेक्ट करने के लिए 33 अरकान की जरूरत होती है। वो 33 आज आए, और वैसे पहले आपने इंट्रो में भी सरदार अब्दुर्रहमान का जो वो शॉट है उसको आपने प्ले किया कि जी हमारे 5 अरकान जो है वो मिसिंग थे, वो नहीं आए। उनमें एक लाला रशीद जो है वो बाद में उसने जो हाउस है उसको ज्वाइन किया, तो जो जाम कमाल खान के खिलाफ जो तादाद है वो 34 हो गई। बज़ाहिर तो आज देखा जाए ये ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि 25 अक्टूबर को स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कुदूस बिजंजो जो है वो असेंबली का इजलास तलब करने वाले हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी तक असेंबली का इजलास जारी है। नाराज भी बैठे हैं, खुशहाल भी बैठे हैं, अपोजिशन भी सारी मौजूद है असेंबली के अंदर। अच्छा, 25 अक्टूबर को ही पता चलेगा। ठीक, तो अली शाह साहब ये बताइएगा कि अब कल भी लियाकत शहवानी साहब हमारे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने ये कहा कि हुकूमती अराकीन जो हैं जाहिर है कि अगर वो वोट नहीं करते अपने कायदे ऐवान को तो वो डी सीट हो जाएंगे, और ये तो उनको जो नंबर है वो अपनी जमात के अंदर से चाहिए। रूल्स ऑफ बिजनेस की जाहिर है कि वो तो तहरीक अदम एतमाद के तो बिल्कुल वाजे हैं, वो तो हाउस पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए असमा, इसमें इस वक्त एक पहले तो सियासी बहरान था, लेकिन अब जो हुक्मरान जमात है बीएपी उसके अंदर एक आईनी बहरान भी है। एक पाची दो सुदूर। आपने देखा जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो नाराज अरकान ने सबमिट किया, उसके बाद जाम कमाल खान अपनी ट्विटर पे आपने देखा होगा वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने ये ऐलान किया कि वो बीएपी की जो सदारत है उससे उन्होंने मुस्तफी होने का फैसला कर लिया है। उसके बाद बीएपी के बानी है सेनेटर सईद हाशमी, उसकी सदारत में कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें जो हाई वेट से बीएपी के नवाबजादा तारिक मक्सी, साबिक वज़ीर आला जान जमाली और सरदार साले बुथानी, उस कोर कमेटी ने जाम साहब के इस्तीफे की तौसीक की। फिर अगले दिन हमने देखा सेनेटर सईद हाशमी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ज़हूर बुलेदी जो साबिक वजीर खजाना बलूचिस्तान है उसको कायम मकाम सदर बीएपी डिक्लेयर किया। लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है असमा, जाम कमाल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके साथ कोलिशन पार्टनर्स बीएपी के जो अरकान थे, वज़रात थे, मुशीर थे, वो सारे मौजूद थे। जाम साहब ने कहा कि ये फैसला उनका जाती था, उन्होंने कोई लेटर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं लिखा है। ये सिर्फ ट्विटर पे उन्होंने एक ट्वीट किया था, लिहाजा वो उस फैसले को वापस ले रहे हैं। उसने कहा कि मैं अब दोबारा सदर हूँ। तो अब एक पार्टी दो सुतून, ये भी एक बड़ा मसला है। 11 जो है नाराज अरकान है, 14 जो है खुशहाल अरकान है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी मसला है। ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये कि ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि अपोजिशन अगर साथ आती है और वो जीतने के बावजूद अब ये फैसला करना होगा कि असल पार्टी कौन सी है, तो एक बहरान सा जन्म ले सकता है। लास्ट क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है 25 तारीख को? इसी तरह से अराकीन लापता हो सकते हैं, पहुंच नहीं सकते हैं, क्या होगा? देखिए असमा, अगर 25 तारीख को जिस तरह आज 5 नहीं पहुंचे, फिर बाद में 4 जो है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अगर ये 7-8 जो है ये नहीं पहुंचे 25 अक्टूबर को, तो मेरे ख्याल में फिर जाम कमाल खान की जो गवर्नमेंट है वो क्लियरली बच सकती है। अगर ये पहुंच गए ऐवान के अंदर, मेरे ख्याल में फिर जाम कमाल खान, आपने देखा 34 अरकान जो है वो आज ऐवान के अंदर आए, इनको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट हासिल है ये अपोजिशन की है। और इंटरेस्टिंगली आप देखिए बलूचिस्तान की एक अजीब डायनामिक्स है, एक अजीब यहाँ की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान जो पीडीएम है, पीडीएम में शामिल जमातें, मौलाना साहब की जमात जेवाईफे और साथ ही बीएनपी मेंगल और साथ ही पीकेएम अचिकजई साहब की पार्टी, ये तीनों जमातें जो है बीएपी के नाराज अरकान को सपोर्ट कर रही है। ऊपर झगड़ा है जो भी है, लेकिन यहाँ पर ये एक है। मेरे ख्याल में 25 अक्टूबर को ये फैसला होगा, लेकिन आज थोड़ा सा सरप्राइज दिया। 5 अरकान नहीं आए तो जो सरदार अब्दुर्रहमान कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अपोजिशन साथ है तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो सकती है बहुत, और नाकाम भी हो सकती है। जैसे कि आपने कहा कि अगर ये पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो फिर तो मामला जो है वो सूरत-ए-हाल बदल सकती है। तो नाराज अरकान को एक्चुअली अपने जो अपना जो नंबर है उसको सिक्योर करना है, और एक उनको किसी ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा उनको कि वो कहीं लापता ना हो सके। तो इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया अली शाह, आपने ज्वाइन किया हमारे साथ। इस वक्त
वक्त मौजूद है जनाब अहमद जवाद साहब, जो कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मोहतरमा नाज बलोच साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली है। और जनाब मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सूबाई असम्बली के रुकन भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा भी हैं और तर्जुमान भी हैं, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब के। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नाज आपके पास आते हैं, जैसे कि आप सुन रहे थे वहां पे, और पीडीएम की जमातें जो है वो सपोर्ट भी कर रही हैं इस वक्त, बल्कि एक आपके भी रुकन है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज जो है वो हमें फेडरल सतह पे या जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हमें इत्तेहाद नजर नहीं आता अपोजिशन का। आज से एहतजाज शुरू हुआ है, पीपल्स पार्टी का है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे इस वक्त सिंध में हर शहर में हमारे कारकुनान जो है वो सरापाए एहतजाज हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो एक बेरहमाना महंगाई का सिलसिला और महंगाई की सुनामी का जो सिलसिला है उसके खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन रुपए की कदर किस तरह गिरती जा रही है और महंगाई किस तरह बढ़ती जा रही है, और हालात इस तरह हैं कि आज पार्लियामेंट में भी हमारा जो क्वेश्चन आवर था वो इसलिए अधूरा रह गया कि उसमें आधे से ज्यादा सवालों के जवाबात नहीं है बुजुर्ग के पास। और दूसरी बात यह है कि एक नॉन सीरियस रवैया है कि पूरा ये सेशन जो है ये कोरम ही पूरा ना होने की वजह से जो है ये अधूरा ही रह गया। तो बात यह है कि हुकूमत की लापरवाही, कोताही, नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस की वजह से इस वक्त वफाक में सूरत हाल यह है कि कोई सुनने वाला वाली वारिस नहीं नजर आता हमें पार्लियामेंट के अंदर। कोई हुकूमत का ऐसा शख्स खड़ा होकर ये नहीं बताता हमें कि हम ये महंगाई क्यों कर रहे हैं, हम अवाम की आमदन में इजाफा करने के बजाय अवाम के जो है वो अखराजात किस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं। अवाम सड़कों के ऊपर तो है, बहरहाल आप देख रहे हैं कि हर जगह मीडिया नाराज। मौसर एहतजाज जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा होता कि कल पीएमएलएन ने पार्लियामेंट के अंदर किया, आज बाहर किया, मगर पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें कोई इस तरह का एहतजाज देखिए, आपको पता है कि 17 अक्टूबर को जो 18 अक्टूबर कारसाज के शोहदा की याद में जो जलसा हुआ कराची में, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़ेह तौर पर अपनी तकरीर में इंदिया दिया है और उन्होंने इशारा दिया है कि किस तरह हम इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज और बेरहमाना पॉलिसीज की वजह से हम अपने लाए अमल क्या इख्तियार करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है आसमा, ये इसी बात की कड़ी है। आज बलूचिस्तान के अंदर क्यों नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं, उनका जो मेन वजह है वो कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इस वक्त एक अवाम के अंदर जो तशवीश की लहर है वो इसी वजह से कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अगर आपके पास गवर्नेंस ना हो, अगर महंगाई बेकाबू होती जा रही हो और आप आके अवाम को ये भी बताने से कासिर हो कि जी आप अवाम पे ये जुल्म क्यों ढा रहे हैं, तो फिर मुझे बताइए कि फिर यही होगा ना जो बलूचिस्तान में हो रहा है। मलिक साहब, अब ये आप लोगों ने एहतजाज किया, आज सड़कों पे आप निकले हैं, बहरहाल आगाज है जो भी है, लेकिन आप पसे पर्दा भी कुछ बातें चल रही हैं। समरी नहीं मिली है, उसके बाद जाहिर है कि अब अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ DJISI के हवाले से। तो आप अपोजिशन की तरफ क्या कोई ताकतें देखती हैं, और अगर देख रही हैं तो अपोजिशन के पास क्या है इस वक्त? जी असमा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इन चीज़ों का तो मुझे कोई इल्म नहीं है कि कैसी कोई थिंकिंग होगी और क्या नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली इस मुल्क में जितने भी चाहे कोई इदारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी है, पब्लिक इन जनरल, जो भी कंसर्न लोग हैं या जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो इस तरह के हालात में कौन तशवीश का शिकार नहीं होगा। यानी आप देख लें कि जो गवर्नेंस है, मुझे लेस सेड इज बेटर अंडरस्टूड, गवर्नेंस की पिछले 3 साल में जो तनज़ली है वो भी आपके सामने है, मईशत का जो इनेतात है वो भी आपके सामने है, और जो जिस तरह से कीमतों में इजाफा ये होता है ऐसे नॉर्मली कि या तो आप एक अपनी मईशत के लिए एक स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादातर IMF के पैकेजेस की डिमांड होती है, यानी आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पोज करें, आप सब्सिडीज को कम करें, आप ये कीमतें जो हैं टैरिफ्स बढ़ाएं, ये करें वो करें, ये सारी तफसील होती है उसके अंदर। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपनी स्पाइंग शो करती हैं, और फिर अगर 3 साल में जो भी वो स्टेबिलिटी को परसू करने के मामले में अचीव करती हैं, तो वो आखिरी 2 सालों में ग्रोथ की तरफ निकलती हैं, और जब ग्रोथ की तरफ निकलती हैं तो वो फिर लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ इतना डायरेक्टली नहीं लाती जैसे कि आज की मौजूदा गवर्नमेंट ला रही है। और जो कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हैं, जी देखें कोविड था, और कोविड में तो बाकी दुनिया के अंदर ममालिक भी हैं, अगर
कहीं पे कीमतों में इजाफे हैं, तो वहाँ पे यकदम इकोनॉमी ने एक अपना दोबारा टेक ऑफ भी तो किया, हर जगह पर किया। वो कोई आइसोलेटेड प्रोपोजिशन तो है नहीं, पूरी दुनिया का जैसे ग्लोबल होता है मामला वैसे है। तो जहाँ लोगों की कुव्वत खरीद ही कोई नहीं होगी, उसमें इजाफा कोई नहीं होगा। लेकिन मलिक साहब एक सवाल ये सवाल भी तो है ना, अब वो कह रहे हैं कि हमारी 3 पॉइंट से ऊपर चली गई है मईशत, जीडीपी आ गई है और हमें 2 साल और अगर मिलते हैं तो हम परफॉर्म करेंगे। अपोजिशन अगर सड़कों पे निकलती है और प्रेशर बिल्डअप करती है, तो आपके ख्याल में क्या आप इसका मतलब अपोजिशन इस काबिल हो जाएगी कि वो हुकूमत को घर भेज सके? देखिए, ये सवाल हुकूमत के घर भेजने का से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए जो इस वक्त पब्लिक के अंदर है। ये इस वक्त एक सिन होगा अगर ऑपोजिशन किसी वजह से भी मुत्तहिद होकर इस महंगाई के खिलाफ, इस जो इनसेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ अगर ऑपोजिशन कैंपेन नहीं करती, तो दैट विल बी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत सख्त ज्यादती होगी। लोग ना सिर्फ हुकूमत से सवाल करेंगे बल्कि ऑपोजिशन से भी करेंगे। अनार्की की तरफ जा सकते हैं लोग, खुद बाहर आ सकते हैं। इसको भांप रही है असमा यहाँ अभी इस वक्त। मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊं कि हम तो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने फील्ड के लोग हैं। ट्रस्ट में लोग रोक कर पूछते हैं कि आप इनके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, इनके खिलाफ आप सड़कों पर बाहर क्यों नहीं आ रहे। अब ये पार्लियामेंट के अंदर की बात नहीं रह गई है, अब हमारे साथ हमारी कमर तोड़ के रख दी गई है। हमारे पास बिल्कुल कोई सिलसिला नहीं है अपने रोजगार का, सिलसिला नहीं है अपने घर बार को चलाने का। एशिया खुर्दोनोश की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, आपने जो इनपुट्स देनी है अपने एग्रीकल्चर, बस इट इज अ टोटल डिजास्टर ऑल टुगेदर। तो अब अपोजिशन उसको कैश कर पाएगी कि नहीं? बिल्कुल मलिक साहब, यही बात कि अब अपोजिशन उसको कैश कर पाएगी कि नहीं, ये एक सवाल है। मैं वापस इस पे जरूर आऊंगी, लेकिन अहमद जवाद साहब, आज वजीर आजम ने एक अच्छा ऐलान किया, या एक उन्होंने इजलास बुलाया, उन्होंने पेट्रोल पर सब्सिडी देने का भी प्लान जो है वो बनाया और उसकी हिदायत दी हैं। अल्लाह करे कि ये हिदायत पहुंच भी जाएं और अमल दरामद भी हो। लेकिन आपने जो देखा है कि ना सिर्फ टीएलपी इस वक्त सड़कों के ऊपर है, अपोजिशन इस वक्त सड़कों के ऊपर आ रही है, अवाम है, टीचर्स, क्लर्क्स, ये सब के सब जो है वो इस वक्त एहतजाज करना चाहते हैं। आज नाबीना अफराद का जो है वो बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। तो कैसे आप, हुकूमत कैसे इसको देख रही है? देखें आसमा, महंगाई पे आने से पहले अगर आपकी इजाजत हो तो 1-2 कमेंट में जो डिस्कशन हो रही थी उसमें आपने एक सवाल पूछा था कि पीपल्स पार्टी एहतजाज में नजर नहीं आ रही। तो वो आपकी बात दुरुस्त है, हमें भी कहीं नहीं नजर आ रही। तो अच्छा। लेकिन हम उन्हें इनवाइट नहीं कर रहे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तो पीपल्स पार्टी जो, जी हम बड़े खुश हैं अच्छा। और नाज बलोच साहिबा साथ बैठी हुई हैं, तो हमें खुशी है कि ये अभी तक कहीं पे सड़कों पे नजर नहीं आ रहे। कह रहे सिंध में हमने किए हैं डिवीजन लेवल के ऊपर, हमें सिंध में भी नहीं नजर आए वैसे इनके एहतजाज को। अच्छा चले, ये तो अभी इनसे पूछते हैं कि सिंध में क्यों नजर नहीं आए। अच्छा देखें, अब बात महंगाई की हो रही है। देखें, महंगाई को अगर हम इसको 2-3 पार्ट्स में अगर हम इसको डिस्कस कर लें, एक देखें, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता जो एक ग्लोबल फिनोमेना है। आप अगर अमेरिका में देखें तो वो कह रहे हैं कि 2-3 डिकेड्स के अंदर ये हाईएस्ट इन्फ्लेशन है जो अमेरिका को फेस करना पड़ रहा है। आप चाइना जैसी कंट्रोल्ड स्ट्रांग इकोनॉमी को अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में अब उनका हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। आप सिंगापुर जैसी रिच कंट्री जो है अगर उसको स्टडी करें तो वो आपको अपनी करेंसी को एप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मेनी इयर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अच्छा, अब इसमें एक सवाल है, वहां पे आपकी लोगों की आमदनी भी बताए ना कि फीकस आमदनी कितनी है। अमेरिका के अंदर लोगों को घर बैठ के कितने पैसे दिए गए हैं, उनके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत ने कितने पैसे दिए? मैं आपको उस हिसाब से भी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह अगर टर्की में अगर आप देखें, तैयब एर्दोगान इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज टर्की के अंदर उनको महंगाई के हवाले से है। ये एक इम्पैक्ट हुआ है कोविड के बाद, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी तकरीबन 1.5 साल जब बंद रही और उसके साथ साथ जो पेट्रोल और ऑयल की कंपनीज बंद हुई। अब उसमें आपको पेट्रोल,
कोल, गैस, LPG, हर चीज में आपने देखा है प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसकी सप्लाई चेंज में प्रॉब्लम है। चाइना जैसी कंट्री में जो है लोड शेडिंग हो रही है इस हद तक कि उनको अपनी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ रही है। ये चैलेंजेस तो है ना, इनको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। अब देखें पाकिस्तान, जैसे आपने जो सवाल किया कि हमारी कुव्वत खरीद, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर परहैप्स वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल रीजन में तो है ही है, पूरी दुनिया में भी वन ऑफ द लोएस्ट आप होगी। लोग जब ये बात करते हैं ना तो अवाम जो है ना वो आपको पता है किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रहा। चेक करें यहाँ पे बेरोजगारी चेक करें कितनी बढ़ गई है पिछले मतलब 3 सालों को छोड़े 1 साल के अंदर, उसकी रेशो आप चेक कर लें। इकोनॉमी बहरहाल एक मसला है अहमद जवाद साहब, आप इसको तस्लीम मैं करें। इसीलिए वन बाय वन चीजें, और किया कुछ जैसे नहीं जा रहा आपने कुव्वत खरीद की बात की, मैंने आपको पहली चीज जिसकी एग्जांपल दी वो पेट्रोल की थी। और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। अब उसमें प्राइसेस बढ़ने के बाद उसका पहला इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एनर्जी पे आता है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत और मुशर्रफ की हुकूमत, इन्होंने पिछले 20 साल में जब दुनिया जो है अल्टरनेट एनर्जी पे चली गई, आपके नेक्स्ट डोर इंडिया है 2 से 3 रुपए पर यूनिट में सोलर और विंड एनर्जी पैदा कर रहा है, 80,000 मेगावाट उसी टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में ये 3 हुकूमतें थी। सर आपके जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं वो तो जवाब ही नहीं दे पाए हैं कि उन्होंने क्यों गैस जो वो LNG है वो टाइम पे उसके टर्मिनल नहीं लिए, उन्होंने क्यों नहीं बाहर से खरीदी। वो अभी दिसंबर में जो बहरान आएगा ये तो इसका तो कोई और सीन ही नहीं था ना, इसमें तो आपने सब मैनेज करना था ना। हमाद साहब तो इसका बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी डिटेल से जवाब दे चुके हुए हैं, LPG की सप्लाई, और ये एक अलग सब्जेक्ट हम चल पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर 2 चीजें जो हैं, एक पेट्रोल और एक एनर्जी, जो कि पेट्रोल की वजह से बढ़ता है क्योंकि हमने अच्छे फैसले नहीं किए एनर्जी के कारखाने लगाते हुए, जिसकी वजह से आज अवाम को 19-20 रुपए में मिल रही है, जबकि 2-3 रुपए में ये बिजली इंडिया में आपको 80,000 मेगावाट उसी टाइम पीरियड में जिसमें ये 2। अच्छा, अब आपने मुझे आमदनी फीकस नहीं वो बताई कि फीकस आमदनी जो है वो इंडिया में क्या है, बांग्लादेश में इस वक्त क्या है और बाहर क्या है, वो ये आपने जरूर मुझे आप चेक कर ले और आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने कोई फिगर्स नहीं, इसलिए हमारी प्राइसेस जो है कम है बांग्लादेश से भी और इंडिया से। आसमा, मेरा ख्याल है ये जो कंपैरिजन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सी चीजों पे कंपैरिजन हो रहा है, और राइटली आपने कहा कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं उन ममालिक से जो वाकई में ट्रू वेलफेयर का ख्याल रखते हैं अपने लोगों का, जो अपने लोगों को सोशल सपोर्ट सिस्टम देते हैं, जो अपने बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर वालों को घर बैठे पैसे देते हैं, जहाँ पे हेल्थ मेडिकल हर चीज फ्री है, जहाँ पे मैं आपको नहीं, पिछली हुकूमतों में रोजगार था, पिछली हुकूमतों के दौरान जो है वो चीजें इतनी महंगी नहीं थी, लोगों की पहुंच से दूर नहीं थी। और एक और बड़ी बात थी, देखिए PTI का नैरेटिव क्या था हुकूमत में आने से पहले, 1 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हुक्मरान चोर है, करेंसी 1 रुपए डिवैल्यू होती है, हुक्मरान चोर है। आज भी डॉलर बहुत ऊपर आज आप मुझे बताइए 40% करेंसी डिवैल्यू हुई है, आप बता दें हुक्मरान को हम क्या बोले। अब आप बता दें कि जब पेट्रोल की कीमत में एक दिन में आप अचानक आनन फानन 10 रुपए इजाफा कर देते हैं, अब हम हुक्मरान को क्या बोले। तो जब आप पहले ये बातें करते थे, क्या आप तब सच थे, सही थे, दुरुस्त थे, या आज आप दुरुस्त हैं? तो उस वक्त जब आप तनकीद करते थे तो क्या आपको अंदाजा इन बातों का और इन मुश्किलात का नहीं था? काश के इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बड़ी बड़ी आपने जो बड़े बड़े लोगों को उम्मीदें दिखाई, अगर वो ना दिखाए होते तो आपसे ये सवालात नहीं होते। लेकिन आज बैठकर आप अपने डिफेंस में अगर बैठ के चाइना, रशिया, अमेरिका इंटरनेशनल कंपेरिजन करेंगे तो फिर तब भी आपको सोचना चाहिए। जवाब साहब एक मिनट में आप अगर इसका जवाब, इस पॉइंट का जवाब दे दें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं और फिर जी देखें पेट्रोल के हवाले से तो देखिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि जब इमरान खान इसके हवाले से जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी तो उसकी एक वजह थी। उस वक्त पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 50% टैक्स ऑल टैक्सेस मिला के लगता था, जो कि अब जाके अब इस हुकूमत ने उसको 8 या 10% के ऊपर लेके आ गए। तो अब हुकूमत तो यही कर सकती है ना कि पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस, लेकिन अगर इससे पहले अगर वो 50% टैक्सेस थे तो वो वाकई फिर इसका मतलब है वो तो फिर किसी की जेबों में जाते होंगे ना। मलिक साहब ये जो बात है आज, बल्कि वो कहा जा रहा है कि लंदन से अमेरिका से अच्छी खबर आ जाएगी, खुशखबरी मिल जाएगी, कोई IMF की डील हो जाएगी। सर IMF तो आपके पास इतने खौफनाक शराइत लेके आ रही है कि अवाम किस तरह से उसको फेस करेंगे? क्या हम उनको मना लेंगे कि वो शराइत ना रखें? हम इस पोजीशन में हैं क्या?
نہیں، میرا نہیں خیال کہ حکومت ان کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ بھی کر سکے گی. ان کی شرائط بڑی سخت ہوگی اور جتنی بےتابی کے ساتھ یہ بار بار ان کو اپروچ کر رہے ہیں، آبویسلی وہ ان سے جو باقی ریمیننگ انسٹالمنٹس ہیں وہ لینی بھی ہیں. اور حکومت کی جو پاسٹ ریکارڈ ہے پچھلے 3 سال کا، اس میں کسی جگہ پر بھی یہ نیگوشیٹ کر کے کچھ بھی کوئی ریلیف ایسا جو کہ ان کو پبلک کے لیے لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا، بلکہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ رادر یہ اس کو ریونیو جنریشن کے طور پہ بھی انہوں نے اس کو انکلکیٹ کیا، اس کو اپنے لیے اس میں دیکھا کہ اگر ہم اتنے پیسے یہ ہمیں یہ اہداف حاصل ہوں گے تو اس کے ساتھ ہم ایسے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کریں گے، تو انہوں نے ایک سلائیڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک منطق ڈھونڈنی ہے. ابھی جیسے بھی احمد صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جب انٹرنیشنلی مارکیٹ پرائسز جو تھیں تیل کی وہ کم تھیں اور ٹیکسز زیادہ امپوز کیے جاتے تھے، تو یہ کوشنز ہوتے ہیں جو اویلیبل کوشنز ہیں. اگر میرے پاس اویلیبل کوشن ہے کہ میں زیادہ ریونیو جنریٹ کروں گا اور میں قیمت کو بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق جو آج ہے اسے ایٹ لیسٹ کوئی میں اگر آج 130 روپے یا 40 ہے تو میں اس وقت 60-65 پہ مینٹین کر رہا تھا تو میرے پاس کوشن تھا. آج گورنمنٹ کے پاس دیکھیں ایک یہ 2 ٹیکسز کا ذکر کرتے ہیں. ایک ٹیکس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم سیلز ٹیکس جو ہے وہ اس کو میکسیمم پہ نہیں لگا رہے، پیٹرولیم لیوی ہم میکسیمم پہ نہیں لگا رہے، لیکن اس درآمدی ڈیوٹی کا کیا ہوگا کہ جو کہ ایک ہوش ربا قیمت میں اضافہ ایگزیکٹلی. اور ڈالر کی قیمتیں جو کہ اوپر چلی جا رہی ہیں، آج بھی پتہ نہیں کتنے پیسے اوپر گئی ہیں سر ریکارڈ سطح پہ. ملک صاحب میں ایک چھوٹی سی میں چھوٹی سی مجھے اجازت دیجیے، میں چھوٹی سی ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. بہرحال وزیر اعظم نے آج ایک اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ جو موٹر سائیکل والا ہے اور رکشے والا ہے اور عوامی سواری والا ہے اس کو سبسڈی ریٹ پہ پیٹرول ملے گا. اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، اور پھر اپوزیشن جو کہ اب دمادم مسق قلندر کے موڈ میں ہے وہ کیا نتیجہ حاصل کر پائے گی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک صاحب جو صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے، جیسے ناز نے کہا، لیکن احمد جواد صاحب کا اپنی جگہ پہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظاہر ہے کہ 2 سال اور حکومت کرنی ہے سر، وہ چاہیں گے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے، اور اس صورت میں جب اپوزیشن کے پاس کوئی متبادل پلان نہیں ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہے اس وقت. نہیں دیکھیں اسما، جو چوائس ہے وہ تو پیپل آف پاکستان کی ہے، عوام الناس کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو یہ کہنا کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی، تو وہ مجھے دیکھنا ہے کہ فار دا ایکٹس ڈن جو پچھلے 3 سال میں حکومت نے کیے ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ آج امیڈیٹ ابھی یہ کوئی فیصلہ کریں گے اور فوراً کوئی رائپ فروٹ ہے جس کو اٹھا کے پلک کریں گے اور اپنے باسکٹ میں ڈال دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ 3 سال جو گزرے ہیں اس میں بلا شبہ حکومت ایک ہی موقف اختیار کرتی رہی اور وہ یہ کرتی رہی کہ پیچھے جو ایکٹس تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، ہم درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں. اب وہ جو درست سمت کی طرف یہ اپنے آپ کو گامزن کرنا چاہتے تھے، اب اس کے نتائج سامنے ہیں. اب اگر یہ کوئی اس میں ایک ایسی پالیسی لے کر آتے ہیں جس کے نتیجے میں یکدم ریورسل ہوگا، تو وہ جو پروجیکشنز آ رہی ہیں، فار ایگزامپل جیسے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس فگرز کوٹ کر رہی ہے، تو وہ اس کو انڈیکیٹ نہیں کرتے. جو معاشی ماہرین کل پلس کا ایک وہ سروے بھی آیا ہے، ایگزیکٹلی بالکل پلس کے سروے میں بھی ایگزیکٹلی. تو اس میں ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پرابلی دا گورنمنٹ ہیز مسڈ دا بوٹ. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ اس میں بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو گورننس ریلیٹڈ تھے، اور ان میں جیسے اگر کوئی ویٹ پالیسی ہے تو گندم کہیں آپ نے باہر سے، اب گندم میں تو آپ خود کفیل تھے، اور اگر آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑی یا اس کی شارٹیج ہوئی تو یہ ویٹ پالیسی کے ناقص ہونے کا اس کے ساتھ سلسلہ ہے. لیکن ملک صاحب اب مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن کا کیا ایجنڈا ہے. ہم کل بھی یہ بات پوچھ رہے تھے شاید خاقان عباس صاحب سے کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے سر. آپ لانگ مارچ کریں گے، احتجاج کریں گے، آپ حکومت کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی لے کے آئیں گے، کیا ہے آپ کا پلان؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہ کچھ سبق ایسے ہیں جو تاریخ سے ملتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی زیادتی حکومت کی طرف سے بڑھتی ہے تو اپوزیشن کا کورس نیچرلی فلو میں ڈٹرمن ہوتا ہے. اس وقت آپ کو ایک بڑی ڈٹرمینیشن نظر آ رہی ہے، تمام ساری پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے باوجود بھی، چاہے اس میں پیپلز پارٹی ہے وہ بھی
इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अपना रिजॉल्व शो कर रही है। पीडीएम के अंदर शामिल जमातें, मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात के तौर पे कल प्रेसिडेंट पीएमएलएन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि इसके खिलाफ हम एक भरपूर एहतजाज का एक जामिया प्रोग्राम बना के लेके आ रहे हैं, जो कि हमें नजर ये आ रहा है कि अभी ये उसकी पीक नहीं है। आप देखेंगी कि जब अभी गैस की शॉर्टेजेस होंगी तब अवामी इस्तराब में और इजाफा होगा। इनकी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसीज इतनी पुअर हैं कि जिसके साथ हमें बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि उस वक्त सूरत हाल क्या होगी। ठीक बात है। इसी तरह से जो भी महंगाई है ये और ज्यादा बढ़ेगी तो और ज्यादा आवाम मुस्तरब होंगे। क्या बिल्कुल जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, एक उन्होंने पूरी पिक्चर पेश किया, आपने बताई। क्या लोगों को, आवाम के गम और गुस्से को अपोजिशन कैश कर पाएगी, जबकि अवाम अभी तक तो अपोजिशन से भी मायूस ही दिखाई देते हैं? नहीं, देखिए बात ये आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की कि कंपैरिजन हो रहा था मुख्तलिफ ममालिक के साथ और रीजन की जब बात हो रही थी, तो आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया पर कैपिटा इनकम की बात को कि जब हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो आमदन जो है अवाम की, अगर 30,000 रुपए कमाने वाला शख्स आज से 6 साल पहले भी 30,000 कमा रहा था, 5 साल पहले भी 30,000 कमा रहा था, पिछले साल भी 30,000, अब भी 30,000 कमा रहा है, लेकिन जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा, जो दवाओं की कीमतों में इजाफा, जो बिजली की कीमत में इजाफा, जो गैस की कीमत में इजाफा, जो घी की कीमत में इजाफा, जो कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा, जो दालों की कीमत में इजाफा हुआ है, उसको वो उस 30,000 रुपए के अंदर पूरा हरगिज नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो मैं कहती हूँ पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके वजीरे जो बार बार 3-4 दफा तो आप कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे हुकूमत के ऊपर? देखिए अपोजिशन में थी ना जब पीटीआई, तो आप ये तस्लीम करें कि वो एक अच्छी अपोजिशन पार्टी थी जो कि प्रेशर बढ़ाती थी। देखिए बात ये है कि बिल्कुल आप का अपना एक व्यू पॉइंट होगा, लेकिन बात ये आसमा, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना तर्जे ऑपोजिशन होता है, अपना तर्जे सियासत होती है। पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त भी पीटीआई को कहा था कि आप धरनों में स्टेज और कंटेनर से आके पार्लियामेंट को तकवीयत दें और पार्लियामेंट को ताकत दें और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें। आज भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए विद इन द पार्लियामेंट रहकर हम अपना किरदार अदा करें, ना तो ये पार्लियामेंट जो है ये चल सकती, ये चल सकती नहीं। देखिए मैं समझती हूँ कि हमने जो अपना डेमोक्रेटिक राइट है उसको एक्सरसाइज करते हुए हमने पूरी कोशिश की कि एक जो जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, फिर नून लीग ने अपने 5 साल हुकूमत पूरी की, बट दे हैड पॉलिसीज, दे हैड सर्टेन प्लान्स। यहाँ पे हुकूमत के पास ना सिमत है ना डायरेक्शन है, और उनको पार्लियामेंट में कल को ये कहे कि जी हमें तो 2 साल हुकूमत नहीं करनी, इसलिए आप चलने देना चाहते हैं, आप चलने देना चाहते हैं। आज जो हालत हो गई है, आज तो ये शिकवा पीएमएलएन से करते थे कि वो चलने देना चाहते हैं। आज तो ये हालत आसमा, इस वक्त जो इस हुकूमत की हालत हो गई है कि इस वक्त ये हुकूमत अपने पैरों पे खड़ी होने के काबिल नहीं, और हालात इन्होंने इतने खौफनाक बना दिए। आप ऑप्शंस की बात कर, अच्छा ये जो शिकवा अपोजिशन ये कह रही है, दोनों ने ये कहा कि ये हुकूमत नहीं चल रही है, ये कार्य हुकूमत जो है ये रुका हुआ है। आप कैसे इस लोगों को मुतमईन करेंगे? एक परसेप्शन भी कोई चीज होती है, लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि अगले 2 साल में हालात बेहतर हो जाएंगे? देखें आसमा, जो मलिक अहमद खान साहब ने जो बात की, अवाम की ओपिनियन और हमारी परफॉर्मेंस, आई थिंक सबसे बड़ा मेयार यही है। हम अपने अपने पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं, लेकिन असल फैसला जो है हमारी कारकर्दगी के बारे में वो अवाम नहीं करना है। मैं इसको अगर हम रीसेंट पास्ट में ले जाएं, जहां पे अवाम ने अपना वोट इस्तेमाल किया, तो वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस थे। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में अगर हम अपोजिशन का बयानिया, जो कि अभी नाज बलोच साहबा ने भी फरमाया, मलिक अहमद साहब ने भी फरमाया, क्या उसका आपको लगता है कि उसका कोई असर जो है वो अवाम के ऊपर भी हुआ है? क्योंकि उसके नतीजे के तौर पे तो पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी जमात है जो कि सब सूबों में उसको नुमाइंदगी मिली है, और वो एक ही आप कह सकते हैं एक मरकजी जमात जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, वो तो पीटीआई है, और उसी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो वो तो एक प्रोविंशियल पार्टी पहले से थी, अब प्रोविंशियल में भी उसको 50% पीटीआई के साथ शेयर करना पड़ रहा है। ये इसी इलेक्शन का रिजल्ट है ना। ज़िमनी इंतखाबात में तो आपको जी, अगर एक ज़िमनी इलेक्शन में एक नहीं सर 9, 10, 11 हुए हैं। मैंने अगर मैं इसका मैं बता दूं आपको, यू विल बी सरप्राइज। आप अभी 2018 के इलेक्शन 11 हुए, आसमान, आपके सिटिंग वाटर के मिनिस्टर हार गए। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2018 के इलेक्शन से लेके आज तक कौमी असम्बली की नशिस्तों में पीटीआई की एक नशिस्त भी कम नहीं हुई। वजह आपको बता देता हूँ
कि ज्यादातर जो सीटें थी अपोजिशन ने वो सीटें थी जो कि उनकी अपनी थी। फिर हमने एक दो जगह पे जो हमारी सीट थी, एक कराची की थी, एक हम डस्का की थी, ठीक है, उसके इन लिeu हम सियालकोट में जीत गए। एक सीट हम जो फाटा में हमारी नहीं थी वो हम जीत गए। सियालकोट में पीएमएलएन के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से आप जीते, लेकिन ये बात तय है हमारे ऊपर भी सादिक आती है। अच्छा, अब मैं ब्रेक बिल्कुल सही बात और है, इसमें आप ये देखें कोई फर्क नहीं पड़ा, जो नेट तादाद है पीटीआई की 2018 के इलेक्शन में वो आज भी वही है जी, उसमें कोई कमी नहीं हुई। मलिक साहब, मैं ब्रेक के बाद इस पे बिल्कुल ब्रेक के बाद इस पे लूंगी, क्योंकि आपका ओपिनियन, क्योंकि पंजाब के अंदर बहरहाल इस वक्त जो कंपीट करेगी वो पीटीआई और पीएमएलएन ही एक दूसरे के साथ करेंगे। और इसके ऊपर छोटी सी ब्रेक के बाद हम जरूर बात करेंगे कि अपोजिशन जो है वो क्या वाकई हुकूमत को रुखसत करना चाहती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मलिक साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या अपोजिशन वाकई हुकूमत को रुखसत करना चाहती है, और अगर चाहती है तो आपने एक गिलानी साहब वाली सूरत-ए-हाल आई थी सामने, आप लोग चाहते तो उस वक्त भी और उसके बाद अभी भी इन हाउस चेंज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो बलूचिस्तान असेंबली में इस तरह का नंबर आपके इधर भी मिल सकता है आपको, नहीं? यास्मीन, देखिए ये तो अभी जो अहमद साहब कह रहे थे उसमें एक फर्क ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स नॉर्मली एक गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, और अगर गवर्नमेंट इतने ज्यादा इलेक्शंस लूज करे लोकल गवर्नमेंट्स में तो ये फिर एक बड़ा लम्हा फिक्री होता है। जीतना तो एक रूटीन की बात होती है। यानी पिछले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट्स की तकरीबन अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में 100% उनकी टेक होम थी। कहीं पंजाब में एक आधी सीट आ रही, इसी तरह सिंध में शायद एक भी नहीं थी, केपी में भी प्रॉब्ली ओवरवेलमिंगली पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो वही जीते। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा अदम एतमाद है कि ऑलमोस्ट आपने 50-50% यानी पंजाब में तो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हैं, और वो इलाके जिनमें ज्यादा सिविलियन आबादियां हैं, फॉर एग्जाम्पल लाहौर कैंटोनमेंट है, या फॉर एग्जाम्पल आप जो दूसरा लाहौर का वॉल्टन रोड का कैंट है जहाँ पे सिविलियन बड़ी आबादियां हैं, हाँ। तो वहां पर बड़ी बैडली पीटीआई को मुस्तरद किया गया। अच्छा, ये एक इन हाउस चेंज और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की, ये तो हम इलेक्शन को भी अच्छा देखिए, इन हाउस एक बड़ा वायबल ऑप्शन है। इन हाउस में कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन हमारी लीडरशिप का या बाकी जो नुक्ता इख्तलाफ भी बना पीडीएम के दरमियान, वो गालिबन ये था कि हम सिस्टम के खिलाफ बात करते थे। 3 साल हम ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि ये फेयर प्ले के नतीजे में गवर्नमेंट की क्रिएशन हुई है। आरटीएस आज तक अनएक्सप्लेन्ड है। 7 घंटे का एक बिल्कुल एब्सोल्यूट साइलेंस एंड इनऑर्डिनेट डिले, जिसको हर सूरत गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए था अपनी मॉरल अथॉरिटी को प्रूव करने के लिए कि दे आर राइटफुली इलेक्टेड। ये बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन उस पर हुकूमत ने बिल्कुल कभी कोई सही नहीं की, कोशिश ही नहीं की उसके मुतालिक। बाहर के हैविंग सेड सो, ये इन हाउस चेंज एक बड़ी वायबल ऑप्शन है, लेकिन उसमें अभी हमारा ठीक ये अभी आप देखेंगे ना, ये बलूचिस्तान में जो हो रहा है, हाँ। ये बलूचिस्तान में जो हो रहा है, इसका कोई मंतकी हल जब निकलता है सर, लेकिन कहा जा रहा है कि जो ताकतवर हल्के वो न्यूट्रल हो चुके हैं। तो देखिए, न्यूट्रलिटी नजर आती है, रिफ्लेक्ट होती है। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था तो जितने दिनों के लिए न्यूट्रलिटी थी वो सबको पता थी न्यूट्रलिटी है, और जब वो न्यूट्रलिटी किसी साइड पे अपना झुकाव कर गई तो तब भी सबको नजर आया कि झुकाव कैसे हो गया। अच्छा, अब आप वो कह रहे हैं वायबल ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी तो पहले से कह रही है तहरीक अदम एतमाद के लिए, तो बढ़ सकते हैं आप लोग आगे पीएमएलएन? देखिए देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। बिल्कुल इस हुकूमत का अब जो है, इस हुकूमत का और अवाम का एक साथ गुजारा नामुमकिन हो गया है। अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे नाको चने चबवाने की, तो मैं समझती हूँ इस हुकूमत ने अवाम को नाको चने चबवा दिया है, और आड़े हाथों अवाम को, पहले अपोजिशन को लिया था लेकिन अब अवाम को आड़े हाथों ले लिया है। देखिए 3 साल तक या हुकूमत से पहले तो आप कह सकते हैं कि दूसरे बुरे थे, हम आएंगे हम कुछ अच्छा कर दिखाएंगे, लेकिन अब 3 साल जब आप हुकूमत में हो और तब भी अगर आपसे सवाल किया जाए कि महंगाई क्यों है उरूज पे, बेरोजगारी क्यों है, आपकी सिमत दुरुस्त नहीं, आपके पास क्या पॉलिसी है, क्या विजन
ڈسکشن ہے, کیا پلان ہے, معاشی ٹیم آپ کی کیا ہے, تو اس پہ اگر آپ کو پھر جواب ملے کہ جی سب کچھ بیڑا غرق آپ کر کے گئے ہیں, تو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ آپ الزام تراشی حکومت میں رہتے ہوئے 3 سال تک مزید الزام تراشی آپ نے تو کر دی, مزید 2 سال بھی اگر یہ ارادہ ہے تو میرے خیال ہے دس از ناٹ. اب احمد جواد عوام نے صاحب آپ سے پوچھنا ہوتا ہے, اور آپ اپنے عوام کی عدالت کی بات کی نا, تو آپ نے دیکھا کراچی میں انتخابات ہوئے, NA-249, آپ نے دیکھا کہ کیا ریزلٹس آئے سامنے. ابھی یہ تو الیکشن سے پہلے تم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کچھ بھی. ہاں جو سرویز ہیں وہ ظاہر ہے کہ احمد جواد صاحب وہ آپ کی حکومت کی فیور میں نہیں ہے, لیکن اگر یہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے تو کیا آپ حکومت مطمئن کر پائے گی عوام کو, اور آپ کا کیا لائے عمل ہوگا, کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ سول ملٹری تناؤ جو ہے وہ فوکس میں ہے. دیکھیں آسما, آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی ایک بات کہی تھی کہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو ہی واز اور پارٹی واز اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن. بالکل, بہت بہت اسٹرانگ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں وہ 30-32 لوگوں کی ایک چھوٹی سی اپوزیشن تھی, کیونکہ دوسری تو فرینڈلی اپوزیشن تھی, تو اس نے ایک بڑا اسٹرانگ اپوزیشن کا رول ادا کیا. اب اگر آپ عددی اعتبار سے دیکھیں تو کمبائنڈ اپوزیشن جو ہے, it is one of the strongest opposition in the history of Pakistan. نمبرز کے ساتھ. ٹھیک بات. But on the other hand, آپ کو یہ اپوزیشن اتنی ویک ثابت ہوتی ہے جب آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کا لایا عمل کیا ہے. اچھا, مگر احمد صاحب میں ایک سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ ختم ہو جائے گا, میں فائنل آپ کا کمنٹ چاہ رہی ہوں. یہ جو گورنمنٹ تھی سب سے یہ سب سے لکی حکومت ہے کہ ادارے سارے ایک پیج پہ, فوج آپ کے ساتھ, عدلیہ آپ کے ساتھ, جو کہ آپ کے وزیر کہتے بھی رہے ہیں, اس کے باوجود پرفارمنس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. باقی دوسری حکومتوں کا تو ہمیشہ سے ایک طرح سے الگ سے انوائرمنٹ ملتا رہا ہے. میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ اتنی بڑی عددی اعتبار سے اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتی, ان ہاؤس تبدیلی بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو, ٹاپ لیڈرشپ, پھر آپ احتجاج یا آپ ایجیٹیشن میں نہیں جا سکتے. یہی فرق ہے صرف پی ٹی آئی میں اور دوسری 2 بڑی جماعتوں میں, کہ پی ٹی آئی میں ان کا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے, اس لیے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے جب اس نے احتجاج کرنا ہے. اب آپ کا سوال جو ہے پرفارمنس کے حوالے سے, ہم کیوں یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی پرفارمنس خراب ہے, جبکہ اس حکومت کے دور میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فارن ریزروز ہیں, اس حکومت کے دور میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فارن ریمیٹنس ہیں, اس حکومت کے دور میں 50 سال کے بعد 3 ڈیم بننے شروع ہو گئے ہیں جو کہ 50 سال میں نہیں بنے. اس میں ٹیکسٹائل کی اس وقت آپ دیکھیں گروتھ کس طریقے سے ہے, کنسٹرکشن میں ایکٹیویٹی کس طریقے سے ہے. تو دیکھیں یہ انڈیکیٹرز جو ہیں یہ بھی تو شو کر رہے ہیں کہ اکانومی کے یہ ڈائنامکس جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن کو شو کر رہے ہیں. چیلنجز ہیں لیکن وہ کووڈ ریلیٹڈ ہے. ایک لاسٹ نوٹ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ خدا را سوشل میڈیا کو ایک ایسا ٹول کے طور پہ استعمال نہ کریں جہاں پہ گالم گلوچ ہو, چاہے وہ آسما شیرازی ہوں, چاہے وہ خاتون اول ہوں, سب کی عزت کریں اور ایک دوسرے کا احترام کر کے آگے بڑھیں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں. خدا کے واسطے ہم ایک دوسرے کو اگر گالیاں دینے پہ اتریں گے تو یہ بالکل میوچل ریسپیکٹ ہے. اور جو آپ نے بات کی, کیونکہ بالکل میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں, تو خاتون اول کے حوالے سے خود پاکستان تحریک انصاف نے چیزوں کو بنایا ہے. میرے جو کالم تھا اس کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور کیوں تحریک انصاف نے اس کو اس طرف ڈائیورٹ کیا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.